کون کون خوش ہے سے خدا دا کلام سننے لگے ہیں؟ ہاللیلویا، ہم سب خوش ہیں۔ زوردار تعلیم میرے جیسے۔ خدا ان کے ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اس کی باتوں کو سن سکیں۔ کیا ٹاپک ہے آج ہمارا؟ دعا اور کیا؟ شفا۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ انسان کی زندگی ان دو چیزوں پر ہے۔ جب دعا کرتے ہیں تو بھی وہ برکت پاتا ہے، اور اگر اسے کہیں بھی شفا نہیں ملتی تو وہ شفا کے لیے بھاگا پھرتا ہے۔ اور آج ہم ان دونوں چیزوں کی پاور کو خدا کے کلام سے دیکھیں گے کہ خدا کا کلام کیا ان کی بابت میں بتاتا ہے، دعا میں کتنی پاور ہے اور شفا کیسے لینی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ہم نے شفا کیسے لینی ہے، لوگوں کو طریقے ہی نہیں پتا کہ کس طرح شفا لینی ہے، اور جب انہیں پھر شفا کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ طریقوں کو غلط کر لیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس طریقے جو ہے رائٹ ہے، کون سا طریقہ درست ہے اور کون سا طریقہ غلط ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ان کو اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ ہم نے صرف شفا پانی ہے، چاہے کہیں سے بھی ہمیں شفا مل جائے۔ آج ہم نے خدا کے کلام سے یہ بھی دیکھنا ہے کہ شفا پانے کا طریقہ کیا ہے، کون سا ٹھیک طریقہ ہے اور کون سا غلط طریقہ ہے۔ اس لیے پہلے ہم دعا کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے، دعا اور شفا۔ پہلے ہم دعا کی بابت سیکھنے کی کوشش کریں گے تھوڑی دیر میں ہی۔ خروج اس کے 31 باب کے اندر جب ہم موسیٰ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو موسیٰ خدا کے ساتھ باتیں کرتا۔ موسیٰ کیا کرتا خدا کے ساتھ؟ دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کیا کرتے ہیں جی؟ باتیں کرتے ہیں، اپنے مقصد، اپنے ارادے، اپنی مصیبتیں، اپنی پریشانیاں ہم خدا کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ ہمیں پرانے عہد نامہ سے ملتا ہے۔ جب ہم خروج کے اندر جاتے ہیں تو موسیٰ جو ہے وہ جاتا ہے پہاڑوں کے اوپر اور جا کر خدا سے کیا کرتا ہے؟ باتیں کرتا ہے۔ پھر جو دعا کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ دعا کے ذریعے سے ہم خدا کی مرضی کو بھی جان لیتے ہیں۔ خدا کی کیا مرضی ہے؟ ہم دعا کی اس کنجی کے ذریعے سے ہم خدا کی مرضی کو بھی جان لیتے ہیں۔ کس طرح؟ جس طرح ہم دانیل اور اس کے 2 باب کی 13 آیات مقدسہ کو جائیں، اگر یہ دانیل کا باب آپ 2 باب پڑھ لیں سارا گھر میں جا کر، تو آپ سیکھیں گے کہ ہم کس طرح خدا کی مرضی کو جان سکتے ہیں دعا کے ذریعے سے۔ ایک خواب کو دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک مورت دیکھی ہے، اور مورت میں نے کیا دیکھا ہے کہ اس کا سر سونے کا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں، میں اس لیے اس کو ذرا جلدی سے کر رہا ہوں۔ لیکن یہاں ڈینیل جو دعا میں ٹھہرتا ہے، اور ڈینیل کی زندگی جو دعا میں ٹھہرتی ہے، اس کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ کلام سکھاتا ہے کہ دانیل جو ہے ہر روز گھٹنے ٹیکتا اور 3 دفعہ دعا کرتا تھا۔ ہاللیلویا! کتنی دفعہ دعا کرتا تھا؟ ایسے ہی نہیں وہ خدا کی مرضی کو جان جاتا۔ دعا جو ہے خدا کی مرضی کو بھی جانتی ہے۔ یہاں بادشاہ نے کہا ہے کہ بھائی فائل گروں کو بلاؤ، جادوگروں کو بلاؤ، جتنے بھی تعبیر کرنے والے ان کو بلاؤ، تے سارے اکٹھے ہو گئے کہ بڑا نام ملنا ہے بادشاہ دے حضور چے۔ سارے آ گئے تے بادشاہ نو پتا سی جے میں انہاں نو خواب دسیا نا، انہاں نے تعبیر اپنے کولوں دس کے نہ ہو جانا ہے، یعنی کہ مینوں گولی دے دینی ہے۔ بادشاہ اس بات کو سمجھتا ہے۔ تے بادشاہ نے سارے جدو فائل گر، جادوگر، تعبیر بتانے والے جمع ہو گئے نا، تے کیا وہ کہندے 10 بادشاہ کیڑا خواب آ؟ کہندا نو خواب بھی تسی دسنا ہے تے تعبیر بھی تسی دسنی ہے تاکہ مینوں پتہ لگے۔ تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ رات کو کیا دیکھا بادشاہ نے، لیکن یہ دانیل جو 3 دفعہ خدا کی حضوری میں جھکتا ہے، خدا نے اپنا ارادہ، اپنا ویژن، اپنی باتیں اس کے اوپر آشکارا کر دی۔ ہاللیلویا! اس کا مطلب کہ دعا خدا کے ارادے کو بتا دیتی ہے، خدا کا ارادہ کیا ہے۔ پھر دعا کے اندر جو طاقت ہے، تیسرا اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو خدا کا ارادہ بدل جاتا ہے، خدا ارادے کو بھی بدل لیتا ہے۔ دعا کے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم خدا کا ارادہ بھی بدل سکتے ہیں، جس کی ایک عظیم مثال یونا 3 باب اور اس کی پہلی آیت مقدسہ میں ہمیں وہ واقعہ، وہ سٹوری ملتی ہے جو نینوا شہر کی ہے، جو کہا جاتا ہے کہ تو جو ہے نینوا کو جا اور ترسیس کو وہ چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟
اب یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں، لیکن میں اس کی ڈیفینیشن یہ بتا رہا ہوں کہ جب ہم بھی دعا کرتے ہیں تو ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں، جب ہم بھی دعا کرتے ہیں تو خدا کی مرضی کو ہم جانتے ہیں، اور جب ہم بھی دعا کرتے ہیں تو ہم بھی خدا کا ارادہ بدلنے کی قدرت رکھتے ہیں، ہم بھی خدا کا ارادہ بدل سکتے ہیں۔ اب دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، آج جو دنیا ہے وہ آج سے ہزاروں سال پیچھے کی دنیا نہیں ہے۔ آج کی جو دنیا ہے جدید ٹیکنالوجی سے بھری ہوئی ہے، جدید جو ہے جو اپنے تجربات سے بھری ہوئی ہے۔ آج کی دنیا اور پرانے زمانوں کی دنیا کو ہم جو ہے ایک جیسا نہیں کہہ سکتے۔ پرانے زمانے میں تو جب وہ کہتے نا جدو پرچھاواں آندا سی تو وہ حساب نال ٹائم دا پتہ رکھدے سی ہے کہ بھائی کی ٹائم ہو گیا، ہن اینا کو ٹائم ہو گیا۔ جدو پرچھاواں ہور اگے آیا انہوں نے کہا ہن ہور ٹائم ہو گیا۔ تے اج تے چھوٹے چھوٹے بچے دے ہاتھ چ ٹچ موبائل ہیں، انہوں پتہ ہے ٹائم کی ہو گیا ہے۔ سو پرانی دنیا اور اس دنیا کے اندر ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے، بھائی یہ جدید دنیا ہے۔ یہاں تو دنیا انسان جو ہے ریموٹ کے ذریعے پریٹ کیے جا رہی ہے۔ چائنا کے اندر ایک ریموٹ جو ہے وہ سیل کے لیے آیا ہے اور وہ سارے ہی کام کرتا ہے انسان کے، روٹیاں بنا کر دیتا ہے، کھانے بنا کر دیتا ہے، اس کی ٹانگیں دباتا ہے، بازار سے سامان بھی لا کر دے دیتا ہے۔ تو اس لیے پرانی دنیا اور اس دنیا میں ہم بہت سارا فرق کر سکتے ہیں۔ اب میں اس دن آپ کو دکھا رہا تھا بائبل کالج میں کہ چائنا نے اپنا سورج بنا لیا ہے، حساب لگائیں۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنا سورج بنایا، یہ جو سورج خدا نکالتا ہے نا، یہ اس سے اچھا سورج ہم نے بنا دیا ہے اور یہ اس سے اچھی روشنی دے سکتا ہے۔ پھر انہوں نے تجربہ کیا، سورج کو جیسے میزائل چھوڑتے ہیں وہ چھوڑا، سورج جا کر آسمان میں رک گیا، پھر انہوں نے سورج صاحب کو نیچے اتار لیا، اور آج یہاں جہاں ان کے ایٹمی پلانٹ پڑے ہوئے ہیں، جہاں ان کی ایٹمی طاقت کے سارے جو ہے چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ایسیسری پڑی ہوئی ہے، انہوں نے اس سورج کو بھی وہاں رکھا ہوا ہے کہ جب ہمیں وقت پڑے گی ہم اسے آسمان میں بلند کر دیں گے۔ سو یہ باتیں ہیں کہ اس دور کے انسانوں اور اس دور کی ٹیکنالوجی اور اس دور کی ٹیکنالوجی میں ہم بڑا سارا فرق کر سکتے ہیں۔ لیکن سنیے، جتنی مرضی ٹیکنالوجی ہے، جتنا مرضی جدت سے بھرا ہوا معاشرہ ہے، جتنی بڑی مرضی ان کے پاس ریسرچ آ گئی ہے، جتنے مرضی ایکسپرٹ جو ہے سائنسدان ہے، سائنٹسٹ ہے، لیکن سنیے خدا ہمارا پچھلے زمانوں میں بھی زندہ تھا اور خدا ہمارا اس زمانے میں بھی زندہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو اس کی عظیم مثال پچھلے سالوں میں ہمیں ملی، چاہے جدید دور ہے نا بھائی، اس کی ایک عظیم مثال ہمیں پچھلے زمانوں میں ملی، جو 2-3 سال گزرے ہیں اس کے اندر ہمیں ایک عظیم مثال ملی۔ کیا ہوا؟ یہ آسٹریلیا کے جنگلات میں ایک دم سے آگ لگ گئی، ایک دم سے آسٹریلیا کے جنگلات میں آگ لگ گئی، تو دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے سارے جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کوئی ایسا کلو ہی نہیں بچا، طریقہ ہی نہیں بچا کہ وہ بچ سکیں۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس کے اندر جانور تھے کہ ان کو کوئی نکال سکے۔ لو جی، آسٹریلیا جدید دور، جدید فائر بریگیڈ کا سسٹم ان کے پاس، یعنی کہ اتنے اسی تو فون کریے نا تے ساڈے گھر اگ لگ گئی، تے جنی دیر نو بجھان والے نے نا اُنی دیر نو بندے تے کوئی سامان ہی نہیں بچتا ہے۔ وہ جی پٹرول پوان گئی گڈی، وہ جدو اگ لگتی ادو انہوں نے یاد آتا پمپ تو پٹرول پوا لیا ہی ہے۔ یہاں ہیلی کاپٹرز، جدید دور، کیا ہوا؟ دیکھتے ہی دیکھتے ہر جانور جو بچنے کی کوشش کر رہا ہے، ہر جانور بھاگ رہا ہے کہ میں بچ جاؤں، لیکن کوئی جانور نہ بچ سکا۔ ایسے جانور کھڑے کھڑے بچارے جل گئے، ایسے کھڑے کھڑے جانور جو ہے نا وہاں جل گئے، کھڑے کھڑے جل گئے۔ ایسے یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے ہی وہ بیچارہ وہاں جل گیا۔ یہ جدید دور کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے پاس ہیلی کاپٹر، فائر بریگیڈ کی جو ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، لیکن کوئی بچا ہی نہیں سکا۔ ایسے ہی جانور جو ہے وہ کھڑے کھڑے بیچارے جھلس گئے، آگ سے جل کر مر گئے۔ بہت نقصان ہوا۔ آسٹریلیا کی گورنمنٹ پریشان ہے، آسٹریلیا پریشان ہے کہ یہ تو بڑا نقصان ہو رہا ہے، کہاں سے ہم لاکھوں کروڑوں جانور پیدا کریں گے، کہاں سے اتنے لاکھوں کروڑوں جانور آئیں گے، کیسے ہوگا یہ سارا؟
कैसे हमारे जंगल जो है वो आबाद होंगे, कैसे टूरिस्ट यहाँ आएंगे। जदीद दौर के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर क्या हुआ, कोई खादम जो है इस जंगल के अंदर इस तरह गया, उन्हें क्या नहीं अग रोक रही, कोई गल नहीं, उन्हें क्या तुसी दुआ करो, सारी दुनिया ਨੂੰ दुआ ਦੀ कॉल दे दो कि ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਸ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀया ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ कि ਸਾਡੇ ਲਈ दुआ करो ਤੇ ਵੇਖੋ दुआ ਦੀ ताकत की है। कॉल चल गई पूरी दुनिया के ऊपर कि ऑस्ट्रेलिया में लगे जंगलात की आग के लिए आप दुआ करें कि वो आग बुझ जाए। यकीन जाने एक दिन उन्होंने कॉल की है, दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया में इतनी बारिश हुई जो फायर ब्रिगेडियर नहीं कर सका वो खुदा की ज़ात ने कर दिया और आग बुझ गई। हालेलुया। सो ये है कि हमारा खुदा कल भी जोरावर था और जदीद दौर के अंदर भी क्या है, वो जोरावर है। सो इसलिए दुआ के अंदर ये कुदरत है, दुआ के अंदर ये पावर है। ऐसे नहीं उसने कहा कि तू खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, वो तेरे रोटी पानी पर क्या देगा जी। ये बरकतें हैं खुदा के साथ बातें करने की। जब हम खुदा के अगला जो हमारा टॉपिक है वो शिफा का है, और शिफा के भी 3 तरीके आज हम देखेंगे कि किस तरह इंसान शिफा को ले सकता है। पहली बात कि जब कोई इंसान दिल से खुदा को कबूल कर लेता है वो शिफा को ले लेता है। दूसरी बात कि जब इंसान किसी की सिफारिश को लेकर आता है, मेरी अम्मी नू ठीक कर दी खुदा, मेरे भरा नू ठीक कर दी, मेरी मासी फूफी हैं, सारे रिश्तेदारों की फरमाइशें लेकर आता है, खुदा वो भी कर सकता है। और तीसरा जो हमारा बात है वो ये है कि जब हम खुदा का हुक्म मानते हैं तब भी हम शिफा को लेते हैं। ये 3 तरीके खुदा का कलाम बताता है। अब शिफा के लिए हम भाग जाते हैं दूसरों के पास, हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाती है हमारा खुदा हमसे नाराज़ हो रहा था तो सानू गर्ज होंदी शिफा दे नाल, असीं कहने कोई गल नहीं शिफा मिलनी चाहिए है, वो भी तो दवा ही करता है। फिर इस तरह के सवाल हमारी ज़िंदगी में होते हैं कि वो भी तो दवा ही करता, लेकिन सुनिए वो दवा नहीं कर रहा होता, जो अपनी जुएं नहीं निकाल सकता वो तेहाडे कंडे किवें कड्डेगा है, कैसे होगा मुमकिन है। कलाम सिखाता है, ज़बूर के अंदर लिखा गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों के गम क्या हैं जी। इसलिए जब भी आप शिफा के मुंतज़र हैं आप मेरे यीशु के पास आएँ। ये देखें जब कोई दिल से ही मान ले आता ना कि भाई मैं शिफा पालांगा तो शिफा देने वाला यीशु है, पहली बात कि वो शिफा पा जाता है। यहाँ इमाल 14 बाब और उसकी 8 से 11 आयत मुकस्सा में लिखा है कि यहाँ एक लंगड़ा है जो जन्म का लंगड़ा है, इसने कभी चलकर नहीं देखा, कभी इसने अपने पाँव पर वज़न नहीं डाला, कभी भागा नहीं है, कभी चला नहीं है, कभी इसने जो है ज़मीन पर ये नहीं देखा कि मैं कैसे चल पाऊँगा। अब पलूस जो है वो कलाम सुना रहा है। पलूस क्या कह रहा है, मेरा यीशु जिसको मैं मानता हूँ वो मुर्दों में से ज़िंदा हो गया। मेरा यीशु जो जिसको मैं मनादी करता हूँ वो जब गलील में फिर रहा था तो उसने मोज़े किए। जब मेरा यीशु सरपत के शहर को गया वहाँ बेवा के लड़के को ज़िंदा कर दिया। जब मेरा यीशु जो है लाजर के घराना के पास गया 4 दिन के लाजर को मुर्दे को ज़िंदा कर दिया। इस तरह यीशु के कलाम की बातें मोजज़ात की बातें वो लोगों को बयान कर रहा है कि सुनो लोगों, जब मेरा यीशु इस ज़मीन पर आया उसको चाहे इन्होंने कोड़े मारे, चाहे मुंह पर थूका, चाहे कांटों का ताज पहनाया, फिर भी वो हलीम था, हम्बल था, वो बर्दाश्त से भरा हुआ था। फिर यहाँ भी इनका दिल ना भरा तो इन्होंने कोड़े लगाए, सलीब पर लटकार दिया और उसे यहाँ तक के मार दिया। लेकिन मेरे यीशु के अंदर ये कुदरत थी कि वो 3रे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। मेरे यीशु के अंदर ये कमाल था। अब वो बड़ा खुश हुआ, जो लंगड़ा था ना जिन्हें कभी चल के नहीं वेख्या, वो बड़ा खुश होया। उन्हें क्या है ये किहड़ियां गल्लां कर रहा, मैं तो किन्ने डॉक्टरां को भी गया सी, मेरे वड्डियां ने तो बड़ी मेरी थेरापी कराई है, बड़ी उन्होंने मेरी लत्तां दी जो है कोशिश की है कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँ। कैसे हो गया, फिजियोथेरापी है, कैसे जो है वो ठीक नहीं हुआ। तो यह किहड़ियां गल्लां कर रहा कि यीशु ने ठीक कर दिता। यकीन जाने बातें सुनते ही, कलाम सुनते ही उसके दिल में ईमान पैदा हो गया। तो पलूस ਉਹਦੇ ਕੋਲ आया तो उन्हें क्या है
ਤੂੰ ਲੰਗੜਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਠ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, मैंने तो कभी भाग कर नहीं देखा। सिर्फ उन्हें सुनिया कि चल यीशु के नाम ते चल। फिर ते उन्हें यीशु की बाबत सुन लिया सी जिहड़ा मुर्दे नूं जिंदा करदा। उन्हें कहा लत्तां दी की मजाल है कि हरकत ना करन। वो उठ खड़ा आ, बल्कि कहंदे उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लग पड़ा। हालेलुया। जब कोई सुनता है ईमान को, जब कोई कलाम को गौर से सुनता है, सुनने से ईमान पैदा होता है। और सुनना कहाँ से है? ऐसे नहीं है बातें। अब इसको तो पता ही नहीं है किसी चीज का। देखे यहां एक और औरत का जिसने सुना है, मरकस 5 बाब और उसकी 25 आयत मुकद्दसा में लिखा है कि वो औरत यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ। ये 25 आयत मुकद्दसा में लिखा हुआ है, 5 बाब 25 आयत मुकद्दसा में। अब इसने क्या सुना है? सुनने से कलाम पैदा होता है, ईमान पैदा होता है ना, और सुनना मसीह के कलाम से। अब इसने क्या सुना है? किसी सहेली के पास बैठी है जाकर, तो सहेली नूं दस रही, सहेली सारे ही पैसे ला दिते आ, 1 रुपया भी नहीं बचिया, तो मैं तो बीमार दी बीमार ही हाँ। जिवें असीं नहीं कहते बड़े बड़े डॉक्टरां को गए हैं, बड़े बड़े तबीबां को गए तो सानूं उन्हें कहा सुन मैं तैनूं एक डॉक्टर की बाबत बतानी हाँ, एक तबीब की बाबत मैं तुझे कहती हूँ जिसका नाम यीशु है। और इसने भी यीशु के मौजज़ात को रिपीट कर 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 इसे बताया है। अब ये कहती है मैं रिपोर्टें नहीं चेक कराऊंगी, मैं अखराजात चेक नहीं कराऊंगी, बल्कि उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी जी। जो सुनता है, जो सुनकर ईमान लाता है। अब सुने, जब भीड़ थी ना तो इसने ये देखें बड़ा ऊपर से नहीं छुआ, यानी कि इत्थों नहीं फड़िया यीशु नूं, पिछों नहीं, इत्थों नहीं फड़िया, कालर तो नहीं फड़िया हैं, बल्कि देखे इसने कहा कदमों में गिर कर कदमों तक जो पोशाक आ रही है उसको छुआ है। तो लिखन वाले दसदे ने कि कोई पोशाक नूं एवें भी नहीं छुया, एवें कपड़े नूं भी नहीं फाड़ के मचोड़िया। सुने, लिखने वाले कहते हैं कि जैसे कोई धागा नीचे आ रहा होता है ना पोशाक में, सिर्फ इसने धागे को ही टच किया है और 12 वर्ष की बीमारी जड़ी है यीशु ने शिफा दे दी। हालेलुया। सो ये सुनने के वसीला से उसकी ज़िंदगी में हुआ। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि जब हम सिफारिशें लेकर आते हैं, हम कहते हैं ना मेरी पुप्पी नूं शिफा दे दी खुदा, अब मेरी भूआ नूं भी दे दी है, बहुत सारी हम सिफारिशें लेकर आते हैं, ये भी सिफारिशें पूरी हो जाती हैं। ये ना समझे कि आपने सिफारिशें नहीं लेकर आनी, भाई सिफारिशें पूरी हो जाएंगी। फ़क्त ये ज़रूरत है कि सिफारिश करने वाला टैट होना चाहिए ईमान च। आमीन। उवें भावें कमज़ोर भी हो चल जाएगा काम, ईमान च टैट होना चाहिए, ईमान में मजबूत होना चाहिए। कैसे? ये सूबेदार है। अगर आप इसको रेफरेंस को लिखना चाहते हैं, मैं इसलिए इस तरह पढ़ने के बगैर बता रहा हूँ क्योंकि आप जानते हो ऑलरेडी। लूका 7 बाब 2 आयत मुकद्दसा में है। अब ये बंदा सूबेदार नहायत गुड आदमी है। किस तरह गुड आदमी है कि इसने चर्चेस बनाए हैं, इसने लोगों की मदद की है, इबादत खाने बनाए हैं, लोग इसके इख्तियार में हैं। तो पहले बुज़ुर्गों को भेजता है कि यीशु से कहो कि मेरा नौकर जो है वो मर रहा है, उसके लिए दुआ करें। तो यीशु कहता चलो चलिए, यहाँ लिखा हुआ है। इसी सबब से मैंने अपने आप को भी तेरे पास आने के लायक ना समझा, बल्कि अपने नौकरों को भेजा। लेकिन जब यीशु को चलते आते देखा तो दौड़ कर घर तो कितना ही पीछे यीशु ने रोक लिया, कितना ही पीछे यीशु ने रोक लिया, तो हाथ जोड़ के मेरे यीशु के अगे खलो गया। हालां सुनो, चर्च बना रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, हिसाब लगा लो कितना अजीम आदमी है। चर्च बनाए हैं, इबादत खाने बनाए हैं, हमें कहता मदद करता है, लोग कहते हैं हमारी मदद करता है, हमें हर दुख से निकालता है, जब भी हमें पैसों की जरूरत पैसे भी देता है। तो यीशु नूं कितना ही पीछे रोक के हाथ जोड़ के खलो गया, कहना मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर आए, मेरा ईमान है तो इत्थों ही कह देगा तो मेरा नौकर शिफा पाएगा। हालेलुया। देखे, सिफारिश नौकर की है, तरले यीशु के ले रहा है, सिफारिश नौकर की कर रहा है, मर नौकर रहा है, भाग खुद रहा है और कह रहा मैं इस लायक नहीं है। तो हुंदा हाँ कि वो 10,000 रुपया हदिया देने वाला है, 10,000 हदिया देने वाला बंदा होया इत्थे,
तो वो कहता फिर मैं पादरी खरीद लिया है। वो कहता फिर पादरी और मेरी मर्जी तो पूरा आएगा, जिधर में कहना पादरी ने उधर नहीं जाना है। तो अगले महीने फिर 10 देता, तो फिर 1500 लोगों को दसदा कि मैं 10,000 रुपया तो हर महीने पादरी को दे देना, मेरा की बनना। वो भाई तू इसलिए देता है कि तेरा कुछ बने, पादरी ने तेरा कुछ बनाना है कि खुदा ने बनाना है। तो यहाँ देखें इबादत खाने बनाने वाला कहता है मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर आए, बल्कि तू इधर से ही कह देगा तो मेरा ईमान मेरा नौकर शफा पाएगा। हालेलुया। सो इसलिए ये सिफारिश है जो उसने पूरी कराई। और आप सब जानते हैं कलाम से कहता है कि उसी वक्त उसके नौकर ने क्या पाली जी, सिफारिशी जो है वो ईमान में पुख्ता था, टाइट था ईमान के अंदर, उसकी जो है ईमान का लेवल बहुत बड़ा था। अब एक और बंदा यहाँ सिफारिश लेकर आया है, मत्ती की इंजील 15 बाब 21 आयत कसम। और यहाँ एक औरत है जो सिफारिश लेकर आई है मेरे यीशु के पास, बेटी के अंदर बदरू है और उसकी बेटी जो है बदरू के अंदर मुब्तला है। अब वो कहती है कि मेरी बेटी को एक बुरी रूह सताती है और पुकार कर कहने लगी, ए खुदावन इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को क्या करती है जी। अपना तो कोई मसला नहीं, अपनी तो कोई बीमारी नहीं, किसका मसला है, किसकी सिफारिश है, बेटी की सिफारिश है। अब यस्सू नहीं चाह रहा कि आज इसे शिफा दी जाए। सुने यस्सू का कोई इरादा नहीं है। शागिर्दां ने भी कहा यस्सू इन्हू रुखसत कर दे कि शोर पाई जाती, अच्छा नहीं लग रहा, असीं अगे अगे तुर रहे हैं, पिछे पिछे शोर पा रही है। आज ही समझे कोई भाग कर इधर पिछे सानू आवाज़ा देंदा होए, कोई बंदा ही आवाज़ा देंदा होए तो कितना अजीब लगता, तो अगर कोई लेडीज आवाज़ें देती हो तो फिर कितना अजीब लगेगा। आज भी हिसाब लगाएं। तो यस्सू ने कहा कोई गल नहीं, बोली जानते हैं, आज नहीं। यस्सू किसी घर में चला गया, ढूंढती ढूंढती उस घर के ही अंदर आ गई। तो यस्सू ने कहा सुन, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा। तो सुनो उन्हें नहीं कहा मैं तो यस्सू इन्ना दौड़ दी आ रही, मैं तो इन्ना तेन आवाज़ा दी तो तू मैनू ऐ सिला देता है, ये किया तूने मेरे साथ। नो, उसने क्या कहा, इस पर यस्सू ने जवाब में कहा, लेकिन इससे पहले उस औरत ने क्या कहा कि मालिक तूने ठीक कहा है, कुत्ते भी उसी टुकड़ों से अपना पेट बढ़ते हैं जो उनके मालकों की मेज से गिरते हैं। तो यीशु ने कहा, ऐ औरत तेरा ईमान छोटा नहीं बहुत बड़ा। और ये लफ्ज़ पहली दफ़ा कलाम के अंदर इस्तेमाल हुआ कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए। तो उदों ही ओदी बेटी ने शिफा पा ली। हालेलुया। ये अगर आप भी सिफारिशें लेकर आते हैं, सुने, अगर आप भी कहते हैं भाई हमारी सिफारिशें पूरी हो जाए, तो सुने यस्सू पर ईमान पुख्ता होने की जरूरत है। यकीन जाने घर में ही सारे रिश्तेदार शिफा पा जाएंगे। कई मुल्कों में ये सरहदों से निकली है, पता नहीं कई सरहद तो आई है, उस मुल्क की भी नहीं है जहाँ यस्सू मुनादी कर रहा है। अब तीसरा जो हम बात कर रहे हैं कि जब हम हुक्म मान लेते हैं ना भाई, हम शिफा पा जाते हैं। इसलिए तो कहना ना हुक्म मनना कुर्बानी चढ़ाने नालों बेहतर है। ठीक है, जेड़ा बंदा हुक्म मान लेंदा ना वो कुर्बानी चढ़ाने नालों अच्छा काम कर लेंदा है। तो जो बंदा हुक्म मान लेता है भाई वो भी शिफा याबी हासिल करता है। अब ये सो रहा है नमाज कोड़ी, सुने, कच्ची पक्की नींद सो रहा सी, पक्का नहीं सी सुता। तो एक लड़की जब इन्होंने हमला किया था तो उनको ये आज़ाद करवा कर लाए थे। ये नुमान की बीवी है, समझे। हाँ जी, आ रही बात। ये नुमान की बीवी है और ये हिसाब लगाएं आपस में बातें कर रही हैं। ये आपस में क्या बातें कर रही हैं, आपस में क्या बातें कर रही हैं। उन्हें क्या मेरा बंदा नहीं ठीक हो रहा, मैं बड़े इलाज करवा लिया। तो अगों जो छोटी लड़की थी, जो सिर्फ छोटी लड़की थी, 12-13 साल 14 साल उसकी उम्र थी, सुने। अब वो कहती है ये अगर मेरे आका के मुल्क में होता ना तो कोड़ ना मरदा, तो कच्चा पक्का सुता तो अखा खुल गई। तो उन्होंने नहीं शो होने दिता कि वो मुलाजमान के सामने मैं की कहांगा है। तो अखा खोल के कहना है इन्हें कि गल कर दी। तो बाद च बुढ़ी के कोल जाके पूछता है वो की कहती सी। उन्हें क्या कहती है अगर ये मेरे आका के मुल्क च होंदा तो कोड़ ना मरदा। कहता किहड़ा आका। उन्हें क्या खुदा दा बंदा कौन है जी, कौन है, नहीं यस्सू नहीं, कौन है,
आइए ये रेफरेंस खोल लें, सलातीन 5 बाब 13 आयत मुकस्सा। यहाँ हम इसको देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। खुदा का बंदा अलीशा, और अगर कहती ये मेरे आका के मुल्क में होता तो भाई कोर्ट से ना मरता। तब उसके मुलाजम पास आकर उससे यूं कहने लगे, क्या कहने लगे, जब ये मेरे आका के पास आ चुका है, आका के पास से वापस जा चुका है, अलीशा ने कहा जाकर 7 गोते ले ला तो तू ठीक हो जाएगा। हुक्म दे दिता ना, हाँ जी की किता, हुक्म दे दिता किन्ने गोते लेने हैं, 7 गोते लेने तो तू की हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो लैके अंदरों ही नहीं बाहर निकलिया कि एडा वड्डा खादम है, इनू मसला की सी, अंदरों बाहर आंदा मैं किन्नी फौज लैके आया, किन्ने गिफ्ट लैके आया। तो सुने अगर वो बातें करता वापस जाता तो जेड़ा अंदर खुदा दा बंदा अलीशा बैठा उसका कोई नुकसान हैगा सी, कोई है सी नुकसान जो था, उन्हें कोर्ट च मरना सी ना, कोड़ी होके ही वापस जा रहा। इसी तरह जब हम भी खादमों के खिलाफ बातें करते, खादमों का कोई नुकसान नहीं, साडा ही मसला ख़राब हो रहा होता। सुने खादमों का कोई नुकसान है। देखे सीनियर पास्टर नूर फजल साहब के खिलाफ लोगों ने कितनी बातें की, क्या क्या कहा, कुछ बिगड़ा, क्योंकि खुदा उसके साथ है। खुदा जो है जिसके साथ है इंसान उसका क्या कर सकता है, आमीन। सो इसलिए इसके मुलाजम कह रहे हैं कि उसके मुलाजम पास आकर उससे यूं कहने लगे कि ए हमारे बाप, जो सरदार है ना उनको ये बाप कहकर उसे मुखातब कर रहे हैं मुलाजम, ए हमारे बाप, अगर वो नबी जो अलीशा है वो नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म तुझे देता तो क्या तू उसे ना करता। बस जब वो तुझे से ये कहता है कि नहा ले और साफ़ हो जाएगा तो कितना ज़्यादा इसे मानना चाहिए, ठीक है। अब वो उसने कहा चल मान लेना, तेरे कहन तो मैं थले उतर जाना। सुने उतरा है नीचे, उतर कर नीचे उसने जब गोता लिया है उसने अपने आप को देखा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठे तिकर जाकर जो है वो अपने बदन को क्या करता है, ते फिर 7वें वारी जो अंदर वड़दा ते बाहर आंदा कलाम दसदा उन्हें हुक्म मान लिया सी ते ओदा बदन एवें हो गया जिवें बच्चा पैदा होवे ते ओदा बदन हुंदा नामलूद बच्चे की तरह। हालेलुया। ते अगर हुक्म ही ना मानदा तो भाई कोर्ट के अंदर ही मर जाना सी। अब आखिरी जो स्लाइड है वो ये है कि यहाँ नए ऐदनामा में हम इस कलाम को वाइंड अप करेंगे, नए ऐदनामा में कि 10 कोड़ी मेरे यस्सु को मिले, ए यस्सु इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर, हम पर क्या कर जी, रहम कर। अब सुने यस्सु दूरों ही हुक्म देता है कि अपने तई जाकर कहनों को कलाम सिखाता है। कलाम इस बात की जो है शहादत देता है, गवाही देता है कि वो बंदे अभी पहुंचे भी नहीं थे, हुक्म मानने से वो मुड़ गए थे, हुक्म मानने से उन्होंने अपना रुख बदल लिया था, अब वो वहां पहुंचे भी नहीं है। कलाम सिखाता वो जाते जाते ही पाक साफ हो गए, लेकिन हुक्म मानना जो है वो ज़रूरी है। आज इस बात को देखें, कुर्बानी रेंदी है तो रहिए, हुक्म ना रहे हैं। तो हुक्म की है तू झूठ नहीं बोलना, तू चोरी नहीं करनी है, तू किसी के खिलाफ गल्लां नहीं करनिया, किसी लिए ना हक नहीं बोलना, ये हुक्म है, ठीक है। हदिया नहीं भी लियाते और भाई कोई मसला नहीं, कुर्बानी चढ़ाने नालों हुक्म मान लेना बेहतर है। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बड़ी सारी बरकत से नवाजे। आमीन। थैंक यू।